சொன்னா குல் லா தமுன்னு அலைய இஸ்லாமக்கும், நீங்க இஸ்லாமானதை வச்சு எங்கள்கிட்ட எதுவும் பெருமை அடிக்க வேணாம். நீங்க அல்லாஹ் ரசூலுக்கு எது இஹ்சான் செய்ய. பலில்லாஹு யமுன்னு அலைக்கும் அன் ஹதாக்கும் லில் ஈமான், நீங்க ஈமான் கொள்வதற்கு ஹிதாயத் செஞ்சானே அல்லாஹ் தன்புறத்தானே உங்களுடைய கல்பை மாத்தி வச்சானே, அதனால உங்க பேர்ல அல்லாஹ் இஹ்சான் செஞ்சிருக்கு. நீங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அல்லாஹ்வுக்கு நீங்க எது இஹ்சான் செஞ்சிருக்கு. அந்த ஆயத்துடைய கருத்தை சர்க்கார் அவர்கள் ரொம்ப சுருக்கமாக நமக்கு சமுத்திரத்தை பூஜாவில் அடைச்ச மாதிரி சொல்லிவிட்டாங்க. இந்த நபிமார்களையும் அவுலியாக்களையும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக நாமளாக இல்லை, நம்மள அல்லாஹ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டான். இது அல்லாஹ்வுடைய பேர், அல்லாஹ்வுடைய அல்லாஹ்வுடைய இஹ்சான். நபிமார்களே அவுலியாக்களுக்கு நாம் விரோதிகளாக ஆயிருந்தா அல்லாஹ் வந்திருப்போம், அல்லாஹ் அழைச்சிருப்போம், அல்லாஹ்வுக்கு விரோதியா போயிருப்போம். அவனுடைய நேசர்களுக்கு விரோதியா இருந்தா அல்லாஹ்வுக்கு விரோதியா இருப்போம். இப்ப அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களுக்கு நாம் நேசர்களாக, ஊழியர்களாக, தாசர்களாக ஆனதுனால அல்லாஹ்வுக்கு நாம நேசர்களாக ஆயிட்டோம். இப்படி அல்லாஹ் தஆலா செலக்ட் பண்ணிட்டான். இது அல்லாஹ்வுடைய பெரும் இஹ்சான் சொல்றாங்க. बिल्कुल जरूरी है. अर्ज़ कर रहा था कि हक़ तबारक व तआला ने हमसे पहले मोहब्बत की, हमें पहले पसंद किया उसने अपने दोस्तों के दोस्त बनने के लिए. अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहले चाहा, उसने हमें चाहा, लिहाजा उसने अपने महबूबीन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी. अगर वो हमसे नफरत करने वाला होता तो अपने महबूबीन से नफरत करने वाला हमें भी बनाता. नहीं, उसने हमसे मोहब्बत की थी. हमने मोहब्बत जब नहीं की उस वक्त से उसने हमसे मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के नतीजे में उसने हमारे दिल में अपने महबूबीन की मोहब्बत रख दी. उस मोहब्बत की वजह से हम उसके महबूबीन को चाहने लगे, और फिर उस चाहत की वजह से वो मोहब्बत भी करने लगा. तो मोहब्बत की इब्तिदा भी उसी से है और इंतहा भी उसी पर है. तो बंदगाने खुदा दायरा वहीं से शुरू होता है, वहीं पर खत्म होता है जहाँ से शुरू होता है. तो अर्ज कर रहा था कि जिस तरह सरकार हजरत फैजी दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि हर चीज वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है. मबदा भी वही है, माद भी वही है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है. बंदगाने खुदा आगाज कायनात भी उसी से है, अंजाम भी उसी पर होगा. तो अर्ज कर रहा था कि हर चीज इसी तरह से है कि वही इब्तिदा भी करता है और उसी पर इंतहा भी होती है. जब ये बात मालूम हुई तो तबारक व तआला ने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जबकि हमने उसे जाना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, भाला भी नहीं था, उस पर ईमान भी नहीं लाए थे, उस पर यकीन भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो हमसे मोहब्बत कर रहा था, वो हमसे प्यार कर रहा था, और वो बेचैन था इसलिए, इस वास्ते कि वो हमें जाहिर करे, हमें अपने महबूब का मुहिब बनाकर पेश करने पर वो बेचैन था. और जब वक्त आया तो उसने हमें पैदा फरमाया, और फिर जब वक्त आया तो उसने अपने महबूबीन की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी. நான் மொழிபெயர்க்கும் போது அவங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்குறதுல கவலைக்காக बहुत से लोग कृष्णा बेटा के जितने भी लवामे के पीरवा हैं सब सरकार के इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते उनकी रूह में कशिशें सुन जैसे सरकार भी हमारी रूह में उतर के बोल रही वकुल्लहुम फी अंफुसिहिम क़ौलन बलीगा, उनकी हमारी जान में उतर के बोली सरकार, ताकि आसानी से समझ में आ रही. फिर भी कुछ लोग नए आए में शायद उनकी खातिर पर अंदर ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா, நீங்க பென்சிலால ஒரு வட்டம் போட்டா ஒரு பாயிண்ட்ல ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா, இப்படி ஆரம்பிச்சு சுத்தி வந்தா அங்கதான் எண்டு முடியும். அவன் என்ன சொல்றான் மகான் அவர்கள், ரெண்டுமே அல்லாஹ் பரத்தான். நம்மள அவன் அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய இல்மிலே தன்னுடைய ஞானத்தில் அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய நேசர்களுக்கு நேசர்களாக, நேசர்களுக்கு தாசர்களாக, ஊழியர்களாக அல்லாஹ் தஆலா செலக்ட் பண்ணி, அப்ப நம்மளுடைய கல்புல அவர்களுடைய முஹப்பத்தை அல்லாஹ் தான் போட்டான். அதான் நாமளா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு உண்டு. சரி, அந்த முஹப்பத்து வளர்ந்து அதன் காரணமாக அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்கிறாங்க. அதுவும் அல்லாஹ்வுடைய புறத்தால், நம்முடைய புறத்தால அது இல்லை. ஆரம்பமும் அவன் புறத்தால, அதனுடைய முடிவும் அவன் புறத்தால். அன்பர்களே, இது அவர்கள் சொல்லக்கூடியதை நாம நம்ம வாழ்க்கைக்கு இது உள்ள வச்சுக்கிட்டான்.
ادھر قرآن دیکھا میں ہمیشہ یاد کبھی ان سے بولا کرتا نام توڑ دے میں ان کو بولتا میں نماز پڑھا بولے انہوں جنت دینے کو تیار مولا تعالیٰ نماز پڑھائے بولے تو ولایت کے ساتھ جنت دیتے اتنا فرق ہے سمجھتے تھے چونکہ ان کا وعدہ ہے حبب الیکم الایمان ایمان تم کو جو محبت والی چیز ہم بنا دیے ایمان کو تم محبت نہیں کر رہے ایمان کو جو تم پسند کر رہے ایمان نہیں نیسی کے உங்களுக்கு புகப்பாக்கி வச்சே உங்களுக்கு அது பிரியமாக்கி வச்சே وزينه في قلوبكم அது உங்க கல்புக்கு அழகாக்கி வச்சவன் அல்லாஹ் وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان அதே மாதிரி உங்களுக்கு குஃபரையும் ஃபுசூகையும் இஸ்யானையும் வெறுப்பாக்கி வச்சவன் அல்லாஹ் يعني நல்ல காரியங்களை உங்களுக்கு முஹப்பத்தாக்கி வச்சது அல்லாஹ் தான் அது குஃபருடைய காரியங்கள் பாவ காரியங்களை வெறுப்பாக்கி வச்சது அல்லாஹ் தான் குர்ஆன் சொல்லுது ஆகவே அன்பர்களே மாணவர்கள் சொல்வது போல நாமளாக அவுலியாக்களை நேசிக்க இல்லை அல்லாஹ் நம் மீது இஹ்சான் செஞ்சிட்டான் அல்லாஹ் தஆலா நம்மளை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டான் இவர்கள் என்னுடைய அடியார்களுக்கு என்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு நபிமார்களை அவுலியாக்களை இவர்கள் முஹப்பத் வைப்பது கொண்டு அதன் காரணமாக இவர்களுக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுக்கணும் இவர்களுக்கு ஒரு உயர் பதவி கொடுக்கணும் இவர்கள் நான் முஹப்பத் வைக்கிறது அல்லாஹ் முஹப்பத் வச்சான் என்று அவர்கள் சொல்லுவது நண்பர்களே அவங்க சொல்ற பயான மொழிபெயர்க்காக நீங்க கேட்டுக்கிட்டா நான் கொஞ்சம் ரசிச்சுக்கிட்டு போய் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமா ஒரு பயான கேட்க வாய்ப்பு கிடையாது என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் நேரடியா வணங்கிறீங்களா सबके से मुंडिया हिला ये ना कुछ अधिकमान रखे मेरा तो हमेशा हाँ जो मजा आया वो कर रहा है अर्ज कर रहा था कि हक तबारक व तआला को जब हमने जाना भी नहीं पहचाना भी नहीं देखा भी नहीं उसे समझा भी नहीं उससे मोहब्बत भी नहीं की अल्लाह को देखना अल्लाह को जानना अल्लाह से मोहब्बत करना अल्लाह से प्यार करना तो बहुत दूर की बात हमने खुद को भी नहीं जाना था खुद को भी नहीं पहचाना था खुद को भी नहीं देखा था खुद को भी नहीं समझा था खुद से भी प्यार नहीं किया था उस वक्त से अब तबारक व तआला हमें जान रहा है हमें पहचान रहा है हम पर मेहरबान है हमसे प्यार रखता है और फिर अब तबारक व तआला ने हमें मौजूद फरमाया पैदा करने के बाद हमें हक तबारक व तआला ने अपने महबूबीन का चाहने वाला बनाया अब हम उसके करम से उसकी तौफीक से उसकी हिदायत से अब उसके महबूबीन को चाह रहे हैं उसके महबूबीन से मोहब्बत रखते हैं तो बंदगाने खुदा जिसने खुद हमें अपने महबूबीन की मोहब्बत में लगाया है तो क्या वो इस मोहब्बत को कबूल नहीं फरमाएगा जो खुद दुआ सिखाता है मैं ये पूछता हूँ अपने भाइयों से क्या वो दुआ कबूल नहीं करेगा दुआ कबूल करने ही के लिए हक तबारक व तआला ने कुरान में दुआएं सिखाई हैं मुख्तलिफ ये मेरा यकीन है ये मेरा अपना ख्याल है तो बंदगाने खुदा इसी तरह वो हमारी मोहब्बत जो है औलियाउल्लाह से हमारी मोहब्बत जो है अंबिया किराम से हमारी मोहब्बत जो है अल्लाह के महबूबीन से उस मोहब्बत को कबूल करने ही के लिए उसने हमारे दिलों में मोहब्बत का जज्बा रखा हुआ तो बंदगाने खुदा ये उसका करम है उसकी नवाजिश है उसकी अता है जितना भी हम एहसान बजा लाए वो कम है जितना भी शुक्र अदा करें कम है हदीस शरीफ में आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्निअमत वहशियतुन क़य्यिदूहा बिश्शुक्र नेमत जो है वो एक वहशी जानवर के मानिंद है एक जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल के मानिंद है वो शहर में नहीं रहता जो जंगली जानवर होता है वहशी जानवर होता है वो किसी के घर में नहीं रुकता उसे लाकर आप घर में रखेंगे भी तो फिर भागकर जंगल में चले जाता है तो उसको अगर आप अपने पास रखना चाहें मुखय्यद अपने पास रखना चाहें घर में या कहीं किसी मकाम पर जंगल से अलग तो आपको उसे बांध कर रखना पड़ेगा किसी संकल से किसी डोरी से रस्सी से
سرکار نے فرمایا کہ جس طرح جنگلی جانور کو اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جنگل سے علیحدہ کر کے تو اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے اسے، تو اسی طرح نعمت بھی ایک جنگلی جانور ہے گویا، اسے اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو شکر کی زنجیر سے اسے باندھ کر رکھو، شکر کر کے شکر کی رسی سے اس نعمت کو باندھ رکھو۔ اگر تم نے شکر نہیں کیا نعمت پر تو نعمت تم سے جدا ہو جائے گی۔ تو بندگان خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، نعمت وحشی جانور کی مانند ہے، اسے رکھنا ہے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے تو اسے شکر ادا کرو۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے تو فرمایا کہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے اگر شکر نہ کرو گے تم، اور حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں اس نعمت میں اور ازدیاد کر دوں گا، نعمت کو زیادہ کر دوں گا۔ نعمت پر نعمت کا تم نے شکر ادا کیا تو نعمت میں زیادتی ہوگی، یہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نعمت پر نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تم نے تو نبی ہاشمی اور مطلبی فرماتے ہیں کہ نعمت زائل ہو جائے گی۔ دیکھیے نعمت پر نعمت کا شکر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے نعمت چلی جاتی، اور نعمت پر نعمت کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے صرف نعمت نہیں رہتی بلکہ اس نعمت میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے گناہ کرنے سے ایک عذاب ہے اور نیکی کرنے سے 2 ثواب ہیں۔ نعمت پر شکر ادا کیا آپ نے تو نیکی کی، ثواب 2 مل رہے ہیں، ایک تو نعمت آپ کے ساتھ رہے گی اور نعمت میں ازدیاد بھی ہوگا، اور اگر آپ نے نعمت پر شکر ادا نہیں کیا تو نعمت آپ سے جاتی رہے گی۔ تو بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ نیکی پر 2 ثواب عطا فرماتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرنے کا ایک ہی عذاب ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کے محبوبین کو چاہنے والے ہیں، اس نعمت کو نعمت سمجھنا اور بڑی نعمت سمجھنا یہی شکر ہے۔ اگر آپ زبان سے نہ بھی کہتے رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا دل سے کہتے رہیے کہ اللہ تیرا کیا کرم ہے کہ تو نے اپنے ولی کا ہمیں گردیدہ بنایا، اے اللہ تیرا کیا کرم ہے کہ تو نے ہمیں تیرے ولی سے کا دشمن نہیں بنایا، دوست بنایا، تیرے ولی کا چاہنے والا بنایا، تیرے ولی کے قدموں پہ سر رکھنے والا بنایا، تیرے ولی سے بغض رکھنے والا نہیں بنایا۔ اے اللہ تیرے ولی سے اگر ہم بغض رکھتے تو کتنا ہم سے ناراض نہیں ہوتا کہ انسان اپنے دوست سے جو دشمنی رکھتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، ایک انسان اپنے دوست کے دشمن کو ہمیشہ دشمن رکھتا ہے۔ بندگان خدا کا خیر و جلال انسان کے خیر و جلال سے بے شمار درجے زیادہ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ کے دوست سے جو دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنا دشمن نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتنے بڑے غضب سے نجات دلائی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دوستوں کا گرویدہ بنایا ہے، دیوانہ بنایا ہے، متوالا بنایا ہے، ان کے قدم پر جھکنے والا بنایا ہے، ان کو اپنا سرمایہ حیات جاننے والا بنایا ہے اور ان سے محبت رکھنے والا بنایا ہے۔ تو بندگان خدا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدا بخشندہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے دوستوں کا ہمیں دوست بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہم جس سے وابستہ ہیں وہ کون ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں، ہم ہمارے ہاتھ میں جس کا دامن ہے، بندگان خدا وہ کون ہے؟ نرسمہ راؤ کا دوست اگر کوئی ہو، اس سے اگر ہمارے مجید بھائی کو دوستی ہو تو بندگان خدا مجید بھائی صاحب کیا سینہ تان کر نہیں ملیں گے لوگوں سے، کیا اکڑیں گے نہیں، کیا اترائیں گے نہیں۔ نرسمہ راؤ کا فرینڈ جو ہے وہ میرا فرینڈ ہے، کیا یہ نہیں بولتے رہیں گے ہر کسی سے؟ کیا یہ بیان نہیں کرتے رہیں گے؟ بندگان خدا اس عزت پر وہ ہمیشہ ناز کرتے رہیں گے، اس مرتبے پر وہ ہمیشہ جو ہے فخر کرتے رہیں گے، گھمنڈ سے ان کا سر اونچا رہے گا، وہ ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے رہیں گے بھائی جو نرسمہ راؤ کا خاص دوست ہے وہ میرا بڑا گہرا دوست ہے۔ بندگان خدا ایک کافر جس کے ہاتھ میں دنیا کی ایک معمولی سی ریاست ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں، ایک اسٹیٹ کا بڑا وزیر جسے وزیر اعظم ہند کہتے ہیں، وہ اس کا جو دوست ہے اس سے جسے تعلق ہے وہ اتراتا پھرتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے لوگوں میں۔ تو بندگان خدا
अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई बादशाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई रुतबे वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई इज्जतों वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अच्छा कोई है जो मोहम्मद का रब हो? बताओ उससे कोई अच्छा हो सकता है? जो मोहम्मद का परवरदिगार हो, बताओ उससे कोई आला हो सकता है? जो मोहम्मद को पैदा करने वाला हो, बताओ उससे कोई हसीन हो सकता है? बंदगान खुदा, जब खुदा ने ये चाहा कि अपने हुस्न को लोगों से मनवाए, अपने हुस्न का दीवाना बनाए लोगों को, तो मोहम्मद अरबी को पेश किया कि देखो जिसकी मखलूक ऐसी हो वो खालिक किस दर्जे का हसीन नहीं होगा। बंदगान खुदा, अपना दीवाना बनाने के लिए मोहम्मद को इस दुनिया में हक तबारक व तआला ने भेजा। देखो जिसके हाथ की पैदावार ऐसी होगी वो खालिक, वो क्रिएटर कितना हसीन नहीं होगा। मोहम्मद में हुस्न भरने वाला कितना हसीन नहीं होगा। जिस मोहम्मद का पूरा हुस्न, जिसके हुस्न का एक परतव है, बताओ वो कितना ज्यादा हसीन नहीं होगा। बंदगान खुदा, अपना दीवाना बनाने के लिए, अपने हुस्न को समझाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेज दिया कि देखो जिसकी मखलूक ऐसी है कि तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पुरखों ने ऐसा हसीन नहीं देखा, तो बताओ कि इसका खालिक कितना हसीन होगा। तो बंदगान खुदा, जिसने भी मोहम्मद को देखा सर झुका के कहा वाकई इसका पैदा करने वाला अजीम है, वाकई इसका रब रब्बुल आलमीन है, वाकई इसका मालिक मालिक कौनैन है। तो बंदगान खुदा अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, और क्यों पैदा फरमाया? उनको हसीन बनाकर पेश किया, किस लिए? अपने हुस्न को मनवाने के लिए, अपने हुस्न का दीवाना बनाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसीन बनाकर पेश फरमाया दुनिया के सामने। और बंदगान खुदा, अपनी रहमत को समझाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन को रहमतों का दाता बनाकर इस दुनिया में भेजा कि देखो जिसकी मखलूक इतनी रहमतों वाली है, इतनी रहमतों देने वाली है, तो बताओ खालिक में कितनी रहमतें नहीं होंगी। मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बनाने वाला कौन है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो बंदगान खुदा, बताओ उसकी रहमतों का क्या आलम होगा जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। हमारी नजर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई रहमत वाला नजर नहीं आता, रहम करने वाला मखलूक खुदा पर नजर नहीं आता। तो बंदगान खुदा, हुजूर का जो खालिक है, हुजूर का जो मालिक है, हुजूर को रहमतों से माला माल करने वाला, हुजूर को रहमतें निछावर करने वाला, बनाने वाला जो है वो कितना रहीम और करीम नहीं होगा। अपनी रहमानियत और रहीमियत को समझाने के लिए मोहम्मद अरबी को उसने रहमतुल लिल आलमीन बनाया कि देखो मेरा बंदा इतना रहम करने वाला है तो मैं कितना रहम करने वाला नहीं, मेरा बंदा इतना हसीन है तो मैं कितना हसीन नहीं। बंदगान खुदा, अपनी कामिलियत, अपनी अकमलियत को जाहिर करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामियत की खलात से सरफराज फरमाकर इस दुनिया में भेजा कि देखो मोहम्मद हर एतबार से मुकम्मल है, मोहम्मद हर पहलू से कामिल है, जिसकी मखलूक इतनी कामिल और अकमल है उसका खालिक कितना जामियत का मालिक नहीं होगा। तो बंदगान खुदा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद से कोई अच्छा नजर नहीं आता तुमको, तो बोलो मोहम्मद से जो अच्छा है वो कितना अच्छा नहीं होगा। मोहम्मद से अगर अच्छा है तो सिर्फ एक है जो मोहम्मद का रब है, मोहम्मद से अगर आला है तो सिर्फ एक ही है जो मोहम्मद का रब आला है। तो बंदगान खुदा, कितना बड़ा करम है उसका कि उसने हमें बंदगान खुदा अपने महबूबीन से निस्बत अता फरमाई, और उसके महबूबीन से जो निस्बत अता फरमाई वही उसकी निस्बत है। उसके महबूबीन से जो निस्बत मिली है वो निस्बत हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ही की निस्बत है। तो बंदगान खुदा, इस नेमत पर हम जितना भी शुक्र करें कम है, ये उसकी नेमत है, ये उसका करम है। जब ये बात मालूम हुई, मैं तो आपने फरमाया कि ऊपर बैठो, मुझे बिल्कुल बेअदबी लगी क्योंकि मैं जब से हूँ खत्मों ही में मैं समझता हूँ और